Hello children, welcome once again to my channel Smita Classes. As you know, we were doing the chapter Water a Precious Resource, lesson 16 of the science book of standard 7. The name of the book is Future Kids Science and it is the 16th chapter, Water a Precious Resource. Already we have completed one part of this chapter. Today we will be doing the second part of this chapter and we will start from groundwater as an important source of water. From there we will start. We will start reading, then I will explain it to you. If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. The moisture in the soil indicates the presence of water underground. If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. The upper limit of this layer is called the water table. The water table varies from place to place and it may even change at a given place. The water table may be at a depth of less than a meter or maybe several meters below the ground. The water found below the water table is called groundwater. What is the source of this groundwater? The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. The process of seeping of water into the ground is called infiltration. The groundwater thus gets recharged by this process. At places, the groundwater is stored between the layers of hard rock below the water table. This is known as aquifer. Water in the aquifers can be usually pumped out with the help of tube wells or hand pumps. Have you ever been to a site where construction work is going on? From where do the workers get water for construction? Maybe you have seen boring being done at such sites to reach the water table. Inquire from the people working there how deep they have to dig. Can we keep on drawing water from under the ground? How will it affect the water table? Depletion of water table. Water drawn from under the ground gets replenished by seepage of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much water as it is replenished by natural processes. However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. This may happen due to many reasons. Increase in population, industrial and agricultural activities are some common factors affecting water table. Scanty rainfall is another factor that may deplete the water table. Yet another factor affecting water table could be the deforestation and decrease in the effective area for seepage of water. तो हमने पढ़ा कि जहाँ कुआं होता है और लोग हैंडपम्प से पानी निकालते हैं तो वो लोग क्या पानी को निकालते हैं, तो वो लोग ग्राउंड वाटर को निकालते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है यूजेबल वाटर का, ड्रिंकिंग वाटर या यूजेबल वाटर का। ठीक है, अगर मान लीजिए आसपास कोई वाटर बॉडी है, कोई नदी बह रही है या कोई तालाब है और उसके आसपास के या कोई झरना है, आसपास की मिट्टी को हम खुदाई करेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ की मिट्टी मॉइस्ट होती है, नमी होती है, भींगी हुई रहती है। ठीक है, यानी कि मिट्टी भींगी हुई है, मॉइस्चर है मिट्टी में, इसका मतलब है कि उसके आसपास अंडरग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे कहीं पानी है उसमें। ठीक है, इसलिए वहाँ मिट्टी भींगी हुई है। अब हम लोग उसके और नीचे 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 खुदाई करते जाएंगे उस मिट्टी में नीचे नीचे, तो एक लेवल ऐसा पहुँच जाएगा जहाँ पे कि जितनी भी मिट्टी है, मिट्टी के कणों के बीच में, मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहेगा और पत्थरों के बीच में जो स्पेस रहेगा वहाँ पानी भरा हुआ हमें मिलेगा। ऐसे ऐसे हम लोग नीचे खुदाई करते जाएंगे। ठीक है, और वो पानी का जो सबसे ऊपर लिमिट होगा, अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर, वो जो पानी भरा रहेगा उसको सबसे ऊपर में जो लेयर रहेगा उसका जो अपर लिमिट है, सबसे ऊपर का जो लेवल है वो वाटर टेबल कहलाता है। ठीक है, वाटर टेबल हर जगह अलग अलग वैरी होता है। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा खुदाई करने पे हमें अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, कहीं कहीं पे कम खुदाई करने पे मिल जाता है। इसका मतलब कहीं वाटर टेबल ऊंचा होता है और कहीं वाटर टेबल बहुत नीचा होता है, बहुत ज़्यादा नीचे होता है, बहुत खुदाई करनी पड़ती है। ठीक है, वाटर टेबल 1 मीटर से कम की दूरी पे भी मिल जा सकता है या फिर बहुत मीटर ज़मीन के नीचे खुदाई करने के बाद भी मिलता है। ठीक है, और इस वाटर टेबल के नीचे जो भी पानी हमें मिलेगा, ठीक है, इन पत्थरों के नीचे जो भी पानी हमें मिलेगा वो क्या पानी होगा, वह ग्राउंड वाटर होगा। अब ग्राउंड वाटर कहाँ से आया, क्या सोर्स है इस ग्राउंड वाटर का, ग्राउंड के अंदर पानी आया कहाँ से। ठीक है, तो जब भी बारिश होती है, हाँ, तो बारिश का पानी मिट्टी के थ्रू होते हुए ज़मीन के अंदर चला जाता है। इसी तरह जितने भी नदियाँ होती हैं या तालाब होते हैं उन सब का पानी भी मिट्टी के थ्रू होके नीचे चला जाता है और नीचे जो भी खाली जगह उसे मिलती है, मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह मिलती है, उससे वह नीचे जाता है और नीचे जो क्रैक्स से मिलते हैं ज़मीन में या पत्थरों के बीच में क्रैक्स मिलते हैं उससे होते हुए नीचे चला जाता है।
तो ये जो प्रोसेस है कि पानी सीप करते जाता है ग्राउंड में नीचे नीचे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, पानी, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, आइदर थ्रू द एम्प्टी स्पेसेस इन सॉइल और थ्रू द क्रैक्स इन रॉक्स, ये नीचे चला जाता है। तो इस तरह ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है ना, ग्राउंड वाटर ख़त्म नहीं होता है, वहाँ पे दोबारा से पानी आ जाता है, ग्राउंड वाटर में पत्थरों के बीच में पानी आ जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे जो है ये जो ग्राउंड वाटर है काफ़ी नीचे बहुत बड़े बड़े हार्ड रॉक्स होते हैं, बहुत ही कि कठोर कठोर पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उनके बीच में ये ग्राउंड वाटर जमा होकर रह जाता है, पानी स्टोर होकर रह जाता है उस जगहों को, यानी एक तरह से वो रिजर्वायर का जगह हुआ जहाँ पानी जमा होकर रह रहा है, उन जगहों को हम कहते हैं एक्वीफर कहते हैं, या एक्वाइफर भी बहुत लोग बोलते हैं, तो एक्वीफर बोलते हैं। और वो एक्वीफर से पानी हम लोग पंप आउट करते हैं, है ना, या तो हैंड पंप चला के हम पानी नीचे से खींचते हैं ऊपर की तरफ, कुआं से खींचते हैं, या फिर हैंड पंप में मोटर लगा रहता है उसकी मदद से हम नीचे वो एक्वीफर से पानी भी ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। आप कभी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ बिल्डिंग वगैरह बन रहा हो, कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, है ना, काम चल रहा हो, जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बन रही हो, तो वहाँ पे वर्कर लोग को पानी कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो ऐसे जगह पे जहाँ पे पहले बिल्डिंग बननी है उसके पहले वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग बोरिंग करते हैं, है ना, बड़ी वाली एक गाड़ी वाली मशीन आती है, वह नीचे ज़मीन के नीचे खुदाई करती जाती है, ड्रिलिंग करती जाती है जब तक कि उनको एक्वीफर नहीं मिल जाए, वाटर रिजर्वायर नहीं मिल जाए। फिर उसमें पाइप पूरा लगाया जाता है नीचे तक और ऊपर मोटर लगाया जाता है, वो मोटर चलाने से वो पाइप के थ्रू पानी ऊपर आता है। ठीक है, तो इस तरह ड्रिलिंग कर करके वो लोग पहुँचते हैं कहाँ तक, वाटर टेबल तक पहुँचते हैं। जो शहरों में क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग घर घर में कर देते हैं, हर जगह बोरिंग कर देते हैं और पानी बहुत एक्सेस यूज़ करते हैं, वेस्ट भी करते हैं, जिसके कारण वाटर टेबल नीचे चला गया है। जहाँ तक बोरिंग है वहाँ तक पानी नहीं आता है, लोगों को और नीचे डीप बोरिंग करानी पड़ती है। इसलिए गवर्नमेंट वहाँ पे कंट्रोल कर देता है कि आप इससे ज़्यादा डीप बोरिंग नहीं करा सकते, नहीं तो वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग चाहे तो ज़मीन के नीचे से पानी कंटिन्यूस निकाल सकते हैं, पर साथ ही साथ वो पानी रेप्लेनिश भी होना चाहिए, पानी वापस उसमें भरना भी चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होना चाहिए। ठीक है, वो रिचार्ज कैसे होगा? जब बारिश का पानी आएगा तो वो बारिश का पानी सीपेज करके नीचे जाएगा, तब जाके वह रिचार्ज होगा, तो वाटर टेबल बराबर रहेगा। कब तक? जब तक आप जितना पानी निकाल रहे हैं उतना ही वापस रिप्लेनिश हो रहा है कुदरती तरीक़ों से, नेचुरल प्रोसेसेस से, रेन वाटर से, रिवर से, पॉन्ड से। ठीक है, अगर कभी बारिश नहीं हुई जिस साल, या बहुत सारे रिवर पॉन्ड आसपास नहीं है, तो अंदर का अंडरग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं होगा, पानी अगर नीचे नहीं जा पाएगा तो, और आप फिर भी पानी निकालते जा रहे हो तो धीरे धीरे क्या होगा, वाटर टेबल बहुत लो चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। ऐसा कब होता है? जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाता है ना, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, लोगों को बहुत पानी की ज़रूरत हो रही है, बार बार पानी वो निकाल रहे हैं, दिन भर 4-5 बार मोटर चला रहे पानी निकाल रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा, उतनी जल्दी तो पानी भर नहीं पा रहा है, तो इस तरह क्या होगा कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। इसी तरह जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनी हुई है वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ में पानी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी वो लोग बार बार मोटर चलाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं। या फिर जहाँ एग्रीकल्चर बड़े बड़े स्केल में हो रहा है, बड़े बड़े ज़मीनों में खेती हो रही है, तो वहाँ पे भी कुओं से या मोटर से पानी वो लोग निकालते हैं, और बहुत पानी यूज़ होता है, उतनी जल्दी वो रिचार्ज हो नहीं पाता है, तो ये सब के कारण वाटर टेबल अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, पानी आसानी से वाटर टेबल में भर नहीं पाता और पानी काफ़ी नीचे चला जाता है। ठीक है, और एक फैक्टर क्या है, स्कैंटी रेनफॉल, जहाँ पे एक तो है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, एक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होना, दूसरा स्कैंटी रेनफॉल होना। अगर जिस साल कम बारिश हुई तो वाटर टेबल नीचे चला जाएगा। और एक फैक्टर क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर। डिफॉरेस्टेशन भी एक कारण है, पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो भी पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, तो जब ऊपर सरफेस से पानी बहता हुआ जा रहा है तो वो पेड़ की जड़ें वो पानी को एब्जॉर्ब करके अंदर ले जाती हैं और वो धक्का देती है पानी को नीचे जाने में। तो अगर डिफॉरेस्टेशन का पेड़ है बहुत कट जाएंगे तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज नहीं होगा, बारिश भी कम होगी पेड़ कटने से। इसी तरह अवेलेबल एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर, आजकल क्या कर रहे हैं लोग, जो है हर तरफ नहीं क्लीन दिखना चाहिए, इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, हर तरफ कंक्रीट कर देते हैं, रोड को, घर के सामने सारे एरिया को कंक्रीट कर दे रहे हैं, सीमेंट से पूरा ये कर दे रहे हैं, और मिट्टी वाला एरिया रह ही नहीं जा रहा है जिससे कि पानी नीचे जाए।
ठीक है। तो पानी को जगह ही नहीं मिल रहा है, एरिया ही नहीं मिल रहा है सीपेज होने के लिए। इसी तरह रिवर और पॉन्ड्स को भी लोग बंद कर दे रहे हैं, वहाँ पे भी बिल्डिंग बना दे रहे हैं, तो पानी को नीचे, ज़मीन के नीचे जाने की जगह ही नहीं मिल रही है। इसीलिए अंडरग्राउंड वाटर लेवल लो होता जा रहा है, डिप्लीट होते जा रहा है वाटर टेबल। ठीक है, वाटर टेबल डिप्लीट होते जा रहा है, पानी खत्म होते जा रहा है नीचे का। Increasing population creates demand for construction of houses, shops, offices, roads and pavements. This decreases the open areas like parks and playground. This in turn decreases the seepage of rainwater into the ground. What could be the consequence? Recall that a pucca floor does not allow water to seep in easily, while in a grass lawn, water seeps through in no time. Moreover, a huge amount of water is required for construction work. Often groundwater is used for this purpose. So, on the one hand, we are consuming more water, groundwater, and on the other, we are allowing less water to seep into the ground. This results in depletion of water table. In fact, the water table in some parts of many cities has gone down alarmingly lower levels. Increasing industries. Water is used by all the industries. Almost everything that we use needs water somewhere in its production process. The number of industries is increasing continuously. Water used by most of the industries is drawn from the ground. Name some industries familiar to you. Make a list of the products obtained from these and used in your daily life. Discuss with your teacher and parents how the growing industrial activity is responsible for the depletion of water table. Agricultural activities. A majority of farmers in India depend upon rains for irrigating their crops. Irrigation systems such as canals are there only in a few places. Even these systems may suffer from lack of water due to erratic rainfall. Therefore, farmers have to use groundwater for irrigation. Population pressure on agriculture forces increasing use of groundwater day by day. This results in depletion of water table. ठीक है, अब है कि वाटर टेबल का जो डिप्लीट हो रहा है, वाटर टेबल कम होते जा रहा है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कारण बताए। उसमें क्या था, सबसे पहला कारण था कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, लोग बहुत बढ़ जाएंगे किसी कंट्री में, तो उसी तरह डिमांड भी बढ़ेगा कि हाँ ज़्यादा घर बनाना होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ज़्यादा होगा ना, घर ज़्यादा बनाए जाएंगे, दुकानें ज़्यादा बनाई जाएंगी, ऑफिसेज ज़्यादा बनाए जाएंगे, रोड्स बनाए जाएंगे, पेवमेंट्स लोगों के चलने के लिए जो सीमेंटेड रोड्स होते हैं वो बनाए जाएंगे। तो इस कारण जितना भी खुली जगह रहती है, जैसे कि पार्क है और प्लेग्राउंड है, वो सब भर जाते हैं, उन सब में बिल्डिंगें तैयारी हो जाती हैं, जितने भी पार्क और प्लेग्राउंड है। ठीक है, और हर जगह कॉन्क्रीट हो गया, तो ऐसे में क्या होता है कि जो है रेन वाटर सीपेज होके ज़मीन के नीचे जा ही नहीं पाता है, क्योंकि हर जगह तो एक बिल्डिंग बन गई, हर जगह सीमेंटेड कॉन्क्रीट एरिया हो गया है। ठीक है, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि पक्का फ्लोर में पानी को वो सीपेज होने नीचे नहीं जाने देता है, सीप करके नीचे जाने नहीं देता है, जबकि वही ग्रास लॉन रहे, घास वाली लॉन रहेगी, घास वाले मैदान रहेंगे, तो वहाँ से आसानी से पानी सीपेज होकर ज़मीन के नीचे चला जाता है और वाटर टेबल ठीक ठाक रहता है। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कारण है। इसी तरह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ पे घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती है या रोड भी बनते हैं, वहाँ पे बहुत पानी की ज़रूरत होती है उनको बनाने के लिए। ठीक है, तो अक्सर वहाँ पे लोग ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। ऑल्दो वहाँ पे ग्राउंड वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो तो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं है, पर है कि वहाँ पे वो लोग दूसरा पानी लाएंगे कहाँ से, जो पॉल्यूटेड पानी है उसको लाना उनके लिए वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे भी ग्राउंड वाटर ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग बहुत ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूजेस के लिए तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग इतना कंस्ट्रक्शन कर दे रहे हैं कि हम लोग रेन वाटर को सीपेज भी होके नीचे जाने नहीं दे रहे। तो इस तरह क्या हो रहा है कि वाटर टेबल डिप्लीट होते जा रहा है, वाटर टेबल ख़राब होता जा रहा है। ठीक है, वाटर टेबल लो होते जा रहा है और नीचे पानी नीचे चलाता जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे सिटीज़ में वाटर टेबल बहुत ही नीचे चला गया, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था चेन्नई का, कि अब वहाँ बोरिंग के मोटर भी पानी खींच नहीं पा रहे, क्योंकि वाटर बहुत ही नीचे चला गया। और वो एक अलार्म है, एक बहुत ही सावधान होने की बात है, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं मिलेगी तो लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जितना इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़, अब पॉपुलेशन बढ़ा तो उतनी ही इंडस्ट्रीज़ भी बनती जाती है, क्योंकि लोगों को सामान की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हर एक इंडस्ट्री में पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इंडस्ट्रीज, वाटर इज़ यूज बाय ऑल द इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ नीड्स वाटर समवेयर। तो हम लोग जितने भी सामान यूज़ करते हैं, ठीक है, उन सब को बनाने में पानी की ज़रूरत होती है। एक सिंपल पनीर भी आप घर में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए भी वो लोग पनीर को धोएंगे, उसे प्रिजर्व करेंगे, बर्तनों को धोएंगे, तो हर जगह जो है पानी यूज़ हो रहा है। या फिर टॉयज़ बन के घर में आप टॉयज़ खरीद के ला रहे हो, उसमें भी पानी यूज़ हो रहा है। तो हर जगह जो भी
चीज़ इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर होके आ रही है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सबको बनाने में पानी की ज़रूरत होती है। तो इंडस्ट्रीज़ पानी बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। और दिन पे दिन और इंडस्ट्रीज़ बनती जा रही हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं। तो ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज़ भी अंडरग्राउंड वाटर को ही यूज़ करती हैं। तो इस तरह इसीलिए अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट होते जा रहा है, ठीक है। इसी तरह एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, अब ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन बढ़ गया तो लोगों को खाने की भी ज़्यादा ज़रूरत है, खाने की ज़्यादा ज़रूरत है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा करेंगे फार्मर्स, खेती ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो हमारे तो इंडिया के फार्मर्स किस पे डिपेंड करते हैं? बारिश पे डिपेंड करते हैं कि उनके खेतों में वो इरिगेशन करे, बारिश की मदद से सिंचाई करे, ठीक है। पर है कि बहुत कम जगह पे ही कनाल्स बना हुआ है, कनाल्स बना रहता है तो क्या होता है, नहरें बनी रहती है तो उसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है और वो पानी वहाँ से बह बह के पहुँच जाता है खेतों में। पर जो है बहुत सारे कम जगह पे ही कनाल्स बना हुआ है, तो और वो सब सिस्टम के कारण से भी पानी की कमी हो जाती है खेतों में। कब? जब एराटिक रेनफॉल होता है, मतलब कभी बहुत तेज़ ज़्यादा बारिश हुई किसी सीज़न में, किसी सीज़न में बारिश ही नहीं हुई, तो ऐसे अजीब से सीक्वेंस होगा बारिश का, तो पानी की कमी हो जाती है। तब आखिर फार्मर क्या करे, उन्हें तो फसलें उगानी ही है, तब वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड वाटर को ही मोटर की तरह मदद से खींच लेते हैं और उसी से वो सिंचाई करते हैं, उसी से वो इरिगेशन करने लगते हैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर को वो यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें फसलें तैयार करनी है, पौधों को बड़ा करना ही है। तो इस कारण वाटर टेबल डिप्लीट हो जाता है, ठीक है, वाटर लेवल नीचे जाने लगता है। Distribution of water. The distribution of water over the globe is quite uneven due to a number of factors. Some places have good amount of rain and are water rich. On the other hand, there are deserts which have scanty rainfall. India is a vast country and the rainfall is not the same everywhere. Some regions have excessive rains while some others have very little rainfall. Excessive rains cause floods whereas the absence of rains result in droughts. Therefore, some regions in our country may have floods while others may suffer from drought at the same time. Given here is the rainfall map of India. It gives the average annual rainfall in different regions of your country. Locate on the map the place you live in. Are you blessed with sufficient rainfall? Is there sufficient water available in your area throughout the year? It may be possible that we are living in an area where there is sufficient rainfall yet there is shortage of water. Can we attribute this to mismanagement of water resources? Water management. You have read in class 6 that in many places the regular supply of water is provided by a well-planned pipe system. When the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination. You might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipes. It is the responsibility of the civic authorities to prevent such wastage of precious water. अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की बात करें कि वाटर पानी जो किस तरह से बटा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पूरे ग्लोब को अगर हम देखेंगे, हमारे पूरे पृथ्वी को देखेंगे तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है। कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है और उसके बहुत सारे कारण हैं, तरह तरह के कारण हैं, ठीक है। कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, मतलब कहीं पे पानी ज़्यादा है कुछ एरियाज में, कहीं पे पानी कम है, तो उसके बहुत फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कारणों के कारण है ऐसा। उनमें से एक कारण क्या है कि बारिश, है ना। कुछ जगहों पे बहुत अच्छी सी बारिश होती है और कुछ जगहों पे बहुत ही कम बारिश होती है। इसीलिए जैसे कि डेजर्ट एरिया जो है, मेरुस्थल सब में कम बारिश होती है। इसीलिए क्या होता है कि कुछ जगहों पे पानी ज़्यादा पाया जाता है, पानी सोर्सेज भी ज़्यादा रहते हैं और कुछ जगहों पे पानी कम पाया जाता है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे भी बारिश समान रूप से हर तरफ नहीं होती है। कोई कोई एरिया जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे मणिपुर, आसाम के तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होगी, और कुछ एरिया है जैसे राजस्थान, हरियाणा, उस तरफ जो है बारिश कम होगी। और जब बहुत ज़्यादा बारिश जिस तरफ होगी तो वहाँ पे फ्लड्स आ जाता है ना, बाढ़ आ जाती हैं। और अगर बारिश बहुत ही कम हो कंट्री में तो क्या होगा, अकाल पड़ जाता है, ड्राफ्ट हो जाता है। इसीलिए कुछ कंट्री में फ्लड्स, कंट्री में कुछ एरियाज़ में आप देखेंगे फ्लड हो रहा है और कुछ एरियाज़ में उसी टाइम सूखा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया आपके बुक में दिखाया गया है, उसमें बता रहा है कि एक साल में एवरेज रेनफॉल कितनी हो रही है कंट्री के अलग अलग एरियाज़ में। तो इसमें आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, वो सब के रीजन में काफ़ी बारिश हो रही है। 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश एक साल में हो रही है, ठीक है। वही आप देखेंगे इस मैप में तो आपका जो है वहाँ पे है राजस्थान साइड का एरिया है, वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत कम बारिश हो रही है, 0 से 20 सेंटीमीटर एनुअली
बारिश हो रही है। एक साल में 0 से 20 सेंटीमीटर ही वहाँ पे बारिश हो रही है। जबकि आप ये जो ईस्टर्न पार्ट थोड़ा इंडिया का देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, वहाँ पे भी अच्छी ही बारिश हो रही है। 100 से 200 सेंटीमीटर ईयरली वहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है। फिर ये डेक्कन प्लेटू में आप देखेंगे तो उसके मिडिल वाले जगह पे वहाँ पे भी कम बारिश हो रही है। 40 से 60 वो भी 0 से 20 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल हो रहा है। मतलब कि आप देख सक रहे हैं कि बारिश उतना सब तरह इवनली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आपका वेस्टर्न कोस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में भी काफ़ी बारिश हो रही है, और कोई कोई जगह पे बारिश कम हो रही है थोड़ी, ठीक है। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जो है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, सफिशिएंट रेनफॉल हो रहा है, फिर भी लोगों को पानी का शॉर्टेज हो जाता है। उनको ड्रिंकिंग वाटर या वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उनको नहीं मिल पाता है। ऐसा कब होता है? जब वाटर का मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं किया गया है। आपने पहले भी पढ़ा कि शहरों में एक रेगुलर सप्लाई पानी का मिलता है, घरों में, है ना, सप्लाई वाटर मिलता है। कैसे? वो एक वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम है जो सिविक अथॉरिटीज़ है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, उन लोगों ने पाइपें बिछाई रखी हैं पूरे शहर के एरिया में, और डैम्स वगैरह के पानी को क्लीन करके वो वहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। तो पाइप्स के थ्रू वो सारे मंजिलों पे अपनी पहुँचाई जाती है पानी। पर आपने कई बार देखा होगा कि वहाँ रास्ते में पाइप फटी हुई रहती है और वहाँ से पानी लीक करता रहता है, जिसके कारण जो है वो अच्छा वाटर जो है, यूजेबल वाटर, वेस्ट होने लगता है लीकेज के कारण, और हर घरों तक पहुँच नहीं पाता, इसलिए वाटर शॉर्टेज हो जाता है। यानी इतने प्रेशियस वाटर वेस्ट हो रहा है। तो ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग जाके म्यूनसिपल कमेटी में कंप्लेन करें कि पानी जो पाइप लीकेज हो रहा है इसे आप ठीक करिए, पानी बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मिसमैनेजमेंट पानी का बहुत सारे जगह पे हो रहा है, ठीक है। मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो। ऑल ऑफ अस नो knowingly or unknowingly waste water while brushing teeth, saving, bathing, washing and during many other activities. Leaking taps is another source of huge water wastage. We waste water as though we do not need water over the next time. We have seen that most of the water that we get as rainfall just flows away. This is a waste of precious natural resource. The rainwater can be used to recharge the groundwater. This is referred to as water harvesting or rainwater harvesting, about which you have learnt in class 6. Find out if the buildings in your neighborhood have water harvesting system installed. We have at many places in India an age-old practice of water storage and water recharge, like the Bawris. Bawri was the traditional way of collecting water. With time, the Bawris fell into disuse and garbage started piling in these reservoirs. However, because of the acute water shortage, people in these areas have had to rethink. The Bawris are being revived today. Today, the situation is that in spite of scanty rains, these places are managing their water needs well. A farmer using water in the field can use water economically. Maybe you have heard of drip irrigation. Drip irrigation is a technique of watering plants by making use of narrow tubings which deliver water directly at the base of plant. Bhojpur in the Kutch area of Gujarat has a very erratic rainfall. The only source of fresh water lies underground because rivers in this area do not have water throughout the year. Over the years, demand for water has grown. The withdrawal of groundwater has far exceeded recharge. As a result, the water table has gone down alarmingly. In 1989, the villagers, along with a non-governmental organization, decided to harvest rainwater. 18 check dams were built on the Rukmavati river and its many tributaries. The water so collected increased percolation through the soil and recharged the aquifers. According to farmers, the wells have water now, and the water that flowed into the sea and was wasted has become available for irrigation. तो देखिए, मिसमैनेजमेंट अगर प्रेशियस वाटर का होगा, यूजेबल वाटर को अगर मिसमैनेज किया जाएगा तब वाटर शॉर्टेज हो जाएगा, ऑल्दो बारिश अच्छी हो तब भी, ठीक है। एक इंडिविजुअल लेवल पे भी मिसमैनेजमेंट होता है और वेस्टेज होता है। हम लोग जानते हुए या ना जानते हुए, जब हम लोग ब्रश करते हैं नल खुला छोड़ दे रहे, पानी बहता रहता है, शेविंग करते समय, नहाते समय, कपड़े धोते समय या और कोई एक्टिविटी घर का काम करते समय भी हम पानी काफ़ी वेस्ट करते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है, हम अपना काम करते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जिन घरों में टैप्स लीक करता है या रेलवे स्टेशन या कहीं पे भी, वो टैप से दिन भर में बहुत पानी बह जाता है, इसलिए कहीं पे भी लीकिंग टैप नहीं छोड़ना चाहिए। टैप्स को अच्छे से बंद करना चाहिए, टैप्स की मरम्मत होनी चाहिए कि वो लीक ना करते रहे, ठीक है। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो है
बारिश का जो पानी होता है, बहुत बारिश हो रही, उस पानी को हम कहीं स्टोर नहीं कर पाते और वो बह बह के पॉल्यूटेड नदियों में चला जाता है, जहाँ नदियों के साथ वो मिलके पॉल्यूटेड वाटर बन जाता है ना। तो बारिश के पानी को अगर हम लोग अच्छी तरीके से स्टोर कर ले और इस तरीके से स्टोर करें कि वो ज़मीन के नीचे हम भेज सके, तो जो है वो पानी दोबारा यूज़ हो सकता है और अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ सकता है। इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। रेन वाटर को कहीं से स्टोर करके ज़मीन के नीचे भेजने से क्या होगा कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा और इस प्रोसेस को वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, जिससे कि आप क्लास 6 में भी जिसके बारे में पढ़े हैं। देखिए आजकल शहरों में भी बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट एरिया सब हैं, बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे वो लोग रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा चुके हैं और उन जो भी बारिश का पानी होता है वो इकट्ठा होकर वहीं नीचे जाता है और उन लोग उसी पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को, वो अपार्टमेंट के लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट हैं जहाँ कितने सारे फ्लोर है, कितनी सारी फैमिलीज रहती हैं, फिर भी उनको पानी की शॉर्टेज नहीं फील होती है, ठीक है। इंडिया में बहुत एक ओल्ड एज प्रैक्टिस था, पुराना एक तरीका था जिससे कि पानी को लोग स्टोर करते थे। बावरीज बना हुआ था, है ना, छोटे छोटे तालाब बने हुए थे, टैंक जैसे रिजर्वायर बनाए हुए थे जिनको बावरी कहते थे, और वहाँ पे बारिश का पानी जमा हो जाता था। वो एक पुराना तरीका है पानी को जमा करने का, ठीक है। फिर समय समय जैसे जैसे समय बीतता गया, बावरी क्या होता है, नीचे जो है बावरी के नीचे मिट्टी रहती है, तो वो मिट्टी के थ्रू पानी नीचे चला जाता है। जैसे जैसे समय बीता गया, लोग क्या किए, वो बावरी में धूल मिट्टी भर दिए, बावरी को पूरा बंद कर दिए और वो उसमें मिट्टी भरने लगे और बावरी और यूज़ होना बंद हो गया, उसमें पानी इकट्ठा होना बंद हो गया। फिर वहाँ पे लोग कचरा भी फेंकने लगे, कचरा पाइलअप हो गया और बावरी बंद हो गई और उसमें पानी इकट्ठा नहीं हो पाया। कुछ साल बाद जब पानी का बहुत शॉर्टेज होने लगा, तब लोग फिर से उस बारे में सोचे और फिर बावरीज को क्लीन किया गया, खासकर राजस्थान, पंजाब, वो सब के एरियाज़ में उन बावरी को दोबारा से क्लीन किया गया और अभी उनको फिर से रिवाइव किया गया, उनकी सफाई की गई है। अब दोबारा से उसमें पानी इकट्ठा हो रहा है और आज जो है ऑल्दो कम बारिश भी हो जिस सीज़न में, तो भी वहाँ पे पानी का शॉर्टेज नहीं होता है, क्योंकि बावरी का पानी सीपेज होकर नीचे ज़मीन में चला जाता है, ठीक है। इसी तरह एक ड्रिप इरिगेशन एक टेक्निक है कि फार्मर जो है वो पतले पतले ट्यूब लगाते हैं, मोटर से जहाँ से पानी निकल रहा है उससे वो कनेक्ट करते हैं पतले पतले ट्यूब, और वो पतले पतले ट्यूब में नीचे एक एक वर्टिकल ट्यूब लगा रहता है, जिससे कि पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप सिर्फ उसी जगह पे गिरता है जहाँ पे पौधे लगे रहते हैं, ठीक है। पौधों के बिल्कुल बेस में गिरता है ताकि पानी इधर उधर दूसरी ज़मीन पे गिर के वेस्ट नहीं हो, एग्जैक्ट पौधों के पास पहुँचे, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन ये टेक्निक है जिससे पौधों को हम पानी दे सकते हैं। उसमें नैरो ट्यूब्स लगाए रहते हैं जिससे कि पानी डायरेक्टली पौधों के बेस पे ही पहुँचता है। आप चाहे तो गूगल में ड्रिप इरिगेशन का फोटोग्राफ देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ एक केस स्टडी बताया है कि गुजरात में एक एरिया है, कच्छ एरिया जो है वहाँ पे, गुजरात का कच्छ एरिया, वहाँ पे एक जगह है भोजपुर है, ठीक है, भोजपुर। तो वहाँ पे फ्रेश वाटर ही एकमात्र सोर्स था, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर ही एकमात्र सोर्स था फ्रेश वाटर का, क्योंकि वहाँ की नदियों में पूरे साल में पानी नहीं रहता है, तो वही ज़मीन से निकले हुए पानी को ही हर काम के लिए यूज़ करते थे। तो जब जैसे समय बीता, पॉपुलेशन बढ़ गया, पानी की बहुत ज़रूरत फील होने लगी और इतना ग्राउंड वाटर निकाला गया कि और वो जल्दी रिचार्ज हो नहीं पाया, लोगों को पानी का बहुत शॉर्टेज होने लगा। तब 1989 में विलेजर्स ने कुछ NGO के साथ मिलकर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बोला कि नहीं, हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, कि पानी की दिक्कत हो रही है। और वो लोग क्या किए, 18 चेक डैम्स बनाया गया, हाँ, डैम्स जैसा बनाया गया, मतलब जहाँ पे बाउंड्री के भीतर पानी स्टोर रहेगा, है ना, पॉन्ड्स टाइप का, तो वैसा बनाया गया, जो कि पॉन्ड्स जिसमें बाउंड्री बना रहेगा। तो वैसा 18 चेक डैम्स बनाया गया, कहाँ पे, रुकमावती नदी के पास, और रुकमावती नदी से जितनी उसकी नहरें निकलती है, ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, उन सब के ऊपर वो चेक डैम्स बनाया गया और वहाँ पे पानी कलेक्ट होने लगा। पानी वहाँ से कलेक्ट होकर सीप परकुलेट होकर नीचे चला जाता था, अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता था, ज़मीन के नीचे, और सीपेज हो गए, और इस तरह जितने भी एक्विफायर्स थे ज़मीन के नीचे उन सबको वो रिचार्ज कर देता था। नीचे अंडरग्राउंड लेवल बढ़ जाता था, पानी का वाटर टेबल ऊपर आने लगता था और पानी नीचे भर जाते थे। तो अब फार्मर्स कहते हैं कि अब हम लोग को पानी की दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर अब अपने आप ही रीचेक हो जा रहा है, रिचार्ज हो जा रहा है, क्योंकि हमने जो रिजर्वायर बनाए थे, चेक डैम, उसमें से पानी नीचे बह बह के जाता है।
बारिश का पानी। तो इस तरह अंडरग्राउंड वाटर काफ़ी भर चुका है और वाटर टेबल ऊपर आ गया है, तो अब फार्मर्स को पानी की दिक्कत नहीं हो रही है, खेती करने में, इरिगेशन करने में भी उनको दिक्कत नहीं हो रही है। आपके बुक में भी डायग्राम बना हुआ है ड्रिप इरिगेशन का, आप देख सकते हैं। What role you can play? Have you ever shown concern if you saw a tap leaking in your house, school, or any other place? Leaking taps waste a lot of water. You must take efforts to stop this leakage. There are a number of ways you can adopt to minimize the wastage of water. Let us begin. We have given a few examples. Add on. Turn off taps while brushing. Mop the floor instead of washing. These are water-wise habits. Effect of water scarcity on plants. You must have seen potted plants wilting and ultimately drying up if they did not get water even for a few days. You have already learned in chapter 1 that plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. Just imagine the consequences if water is not available to plants. The green character of the plant shall be lost, planet shall be lost. This may mean the end of all life. For a world without plants shall mean no food, no oxygen, not enough rain, and innumerable other problems. Rajasthan is a hot and dry place. The challenge of natural scarcity of water was met by a successful experiment. A band of social workers have transformed a dry area in the Alwar district into a green place. They have revived 5 dried up rivers, Arveri, Rupa, Rel, Sarsa, Bhagani, and Jhajavali, by constructing water harvesting structures. अब है कि पानी को कंजर्व करने में, पानी को बचाने में हम लोग क्या रोल प्ले कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कहीं पानी नल खुला हुआ है तो आप उस नल को बंद कर सकते हैं। किसी बच्चे ने नल खोल दिया है स्कूल में, आप उसको बंद कर सकते हैं। या कहीं आप देख रहे हैं कि वाटर लीक कर रहा है टैप से, तो आप जाके कंसर्न अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि वहाँ वाटर लीक हो रहा है, वाटर वेस्टेज ठीक नहीं है, आप उसको बंद कराइए, टैप को ठीक कराइए। ये सब कहा जा सकता है। इस तरह हम लोग एफर्ट कर सकते हैं पानी का लीकेज रोकने के लिए, ठीक है। और भी कई तरीके, जैसे कि हम कम से कम यूज़ करें पानी का, जैसे कि जब हम ब्रश कर रहे हैं उसे नल खुला ना छोड़े, नल को बंद कर दिया करें। इसी तरह घरों को धोने की जगह हम उन्हें पोछा लगाएं तो कम पानी यूज़ होगा, कम पानी में यह यूज़ हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अगर ऐसी कुछ सिंपल पानी से भी काम चल जाए तो वहाँ वो सब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब प्लांट्स पे क्या होता है पानी की कमी होने से? आपने देखा होगा गमलों के पौधे जो हैं उनको अगर कुछ दिन पानी ना मिले तो वो सूख सूख के मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसी तरह सोचिए हमारा ये जो प्लैनेट है इसमें अगर पौधों को पानी नहीं मिले तो क्या होगा? पौधे मर जाएंगे। पौधे मर गए मतलब सब प्रॉब्लम शुरू। ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा, हमें खाना पीना नहीं मिलेगा, बारिश नहीं आएगी हमारे यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। धीरे धीरे सारे जीव जंतु, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स भी मर जाएंगे। और ग्रीन कैरेक्टर जो हमारे प्लैनेट का है, हमारे जो पृथ्वी है वो पूरे ग्रीनरी से भरा हुआ है, वह भी ख़त्म हो जाएगा हमारे पृथ्वी का, और एंड ऑफ लाइफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पौधों को जो पानी मिलता है वही पानी से ही उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ज़मीन के नीचे से जो वो पानी लेते हैं उसी से उनको मिट्टी के थ्रू होकर वो पानी उन तक आता है और उनको सारे मिनरल सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसके कारण खाना तैयार होता है, पौधों में फल आते हैं, ठीक है। एक काफ़ी सफल तरीका लिया गया था। राजस्थान में एक बहुत ही गर्म और सूखा जगह है, वहाँ पे ऐसे ही पानी के कुदरती रूप से वहाँ पे पानी कम है, नेचुरल स्केर्सिटी ऑफ वाटर है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ सोशल वर्कर ने क्या किया कि अलवर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान, वो पूरा ही सूखा जगह है, वहाँ बिल्कुल पानी नहीं रहता है। उन्होंने उसको पूरा ग्रीन प्लेस बना दिया। अब वहाँ हरियाली ही हरियाली है। कैसे? उन्होंने जो 5 सूखी हुई नदियाँ थीं, अरवेरी, रूपारेल, सरसा, भगानी और झाझावली, वहाँ पे क्या किया उन्होंने? वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया, मतलब कि डैम टाइप का बनाया जिसमें कि पानी जमा हो जाएगा और वह पानी ज़मीन के नीचे से सीपेज होकर धीरे धीरे नदियों में जाकर ज़मीन के नीचे सीपेज होने लगा और धीरे धीरे नदियों के नीचे के सोर्स से पानी ऊपर आने लगा और ये सारी नदियाँ पानी से भर गई और वो पूरा अलवर जो ग्रीन एंड ड्राई एरिया था, वो जो पूरा हॉट एंड ड्राई एरिया था, वो अब ग्रीनरी से भर गया। तो ऐसा नहीं है कि अब हम लोग अगर कोशिश नहीं करें तो वाटर वापस रिवाइव नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट एक आदमी है जिसको कि वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिन्होंने यही राजस्थान के एरियाज़ में पूरा ग्रीनरी ले आए हैं वो, तो उनको बहुत अवार्ड भी मिला है। तो यह है कि वाटर के हम लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पे वाटर वेस्टेज को रोकना चाहिए और साथ ही साथ कोशिश करनी चाहिए और पौधे वगैरह लगाएं हम, ताकि वाटर रिप्लेनिश होता रहे, अंडरग्राउंड वाटर।
तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, चैप्टर 16 वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। और बहुत इजी चैप्टर था, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में भी आए और इसे जीवन में यूज़ में भी लाए। जल्द ही मिलते हैं एक नए चैप्टर में। थैंक यू।